ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی زیر صدارت مہنگائی کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلے کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اس متعلق ہمیں مزید آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر آگاہ کیجیے گا۔ اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا ہے اور ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9000 دکانوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ٹائیگر فورس رضاکار کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر ذخیرہ اندوزی کی نشاندہی کریں گے۔ شہر کی تمام دکانوں پر ریٹ لسٹ اور اوور چارجنگ کی مانیٹرنگ بھی ہوگی۔ ٹائیگر فورس ضرورت سے زائد اسٹاک یا ذخیرہ اندوزی کے خلاف فوری نشاندہی کرے گی اور ضلعی انتظامیہ اس کے اوپر کارروائی کرے گی۔ ان تمام کارروائیوں کی رپورٹ براہ راست وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے یا اوور چارجنگ کی صورت میں بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلے کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ انتظامیہ یقینی بنائے کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن ضرور ہو۔ بہت شکریہ عبدالقادر، آپ نے آگاہ کیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا حکم بھی دیا۔ نیب نے شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ نیب وکیل نے دلائل میں کہا کہ شہباز شریف کو سوال نامہ دیا گیا جس کے جوابات میں تضاد ہے۔ یہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے، جس پر احتساب عدالت نے استفسار کیا کہ اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو کیا آپ زبردستی جواب لیں گے؟ آپ نے ریفرنس فائل کر دیا، اب کیا تفتیش رہ گئی ہے؟ جس پر نیب وکیل نے کہا کہ ابھی شہباز شریف سے تفتیش باقی ہے۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ پہلے بھی تفتیش کی اور جو دستاویزات مانگی حوالے کر دی۔ عدالت نے شہباز شریف کو 27 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ، ساؤنڈ ایکٹ اور سیکیورٹی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف لاہور کے تھانہ شادرہ میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، سمیع اللہ خان، ملک پرویز، علی پرویز، بلال یاسین، سمیع اللہ خان اور سیف الملوک کھوکر نامزد۔ مقدمہ 2000 سے 2200 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق شادرہ چوک بلاک کر کے ٹریفک روکی گئی جس سے شہریوں کو پریشانی ہوئی۔ ریلی میں حکومتی اجازت کے بغیر گاڑی سے باہر آ کر خطاب کیا گیا۔ خطاب کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کی گئیں۔ گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کی اجازت کے معاہدے کے خلاف ورزی اور اسلحے کی نمائش کرنے پر تھانہ سول لائن میں 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ دونوں ایف آئی آر کی کاپی اے آر وائی نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ پہلے مقدمے کے مطابق جلسہ انتظامیہ نے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے گکھڑ، کاموکی سمیت دیگر علاقوں میں استقبالی کیمپ لگائے۔ جلسے کے شرکاء جنگلے توڑ کر اور کنٹینرز ہٹا کر ممنوعہ علاقے میں گاڑیاں لے کر گئے۔ جلسے سے سزا یافتہ افراد نے خطاب کیا، حکومت اور حکومتی اداروں کے خلاف تقاریر اور نعرے بازی کی اور جلسہ گاہ میں بڑے اسپیکر لگا کر ایمپلیفائر ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ جلسے میں ایس او پیز پر بھی عمل درآمد ہوا اور نہ ہی انتظامیہ نے ماسک پہنے اور نہ ہی شرکاء میں سے کسی نے ماسک پہنا۔ حکومت پٹ چکی ہے، گرفتاریوں کا سیزن 2 شروع ہونے والا ہے۔ نون لیگی رہنما احسان اقبال کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ مقدمے بنیں گے اتنا زیادہ تحریک کو ایندھن ملے گا۔ جب یہ حکومت پٹ چکی ہے تو گرفتاریوں کا سیزن 2 شروع ہونے والا ہے۔ جتنے جھوٹے مقدمے بنیں گے اتنی ہماری تحریک کو زیادہ ایندھن ملے گا، اتنے زیادہ لوگ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ اس کمپنی میں جتنا پیٹرول ڈالا جائے گا وہ اس کو مزید آگ لگائے گا۔ کچھ لوگ کہتے تھے گل ود گئی ہے، گل بہت ود گئی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گل مک گئی ہے۔ دروازے توڑ کے حملے کیے جائیں گے، پھر اس ملک کے اندر گل مک گئی۔ عمران احمد نیازی کی قیمت پر، اس کی نالائکی پر پاکستان کے قومی اداروں کا وقار قربان ہو رہا ہے۔ کبھی عدلیہ کو آگے کرتے ہیں، کبھی مسلح افواج کو آگے کرتے ہیں۔ کہ یہ ایک بہت گھناؤنا کھیل ہے جو یہ حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے کھیل رہی ہے۔
चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचा रखा है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि इनका वाहिद मकसद अपने अदवार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। ये लोग कौमी मुजरिम हैं, इन्होंने कौमी खजाने पर डाका डाला है। ये जान लें इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। बाबाए कौम की कदम बोसी और माँ को जिंदाबाद कहना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि मादरे मिल्लत से कहा कि जिसने उनका इलेक्शन चोरी किया उसी ने हमारा इलेक्शन भी चोरी कर लिया। परेशान हूँ कि एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा। बच्चों पे तकलीफ होती है तो वो माँ बाप के पास जाते हैं। मैंने मादरे मिल्लत को कहा जिस इलेक्शन चोर ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया था उन्हीं चोरों ने हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया है। माँ को जिंदाबाद कहना अगर जुर्म है, बाबा कौम के कदमों को बोसा देना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। और नायलो और जायलो, तुम मुझे मज़ारात का अदब सिखाते हो। हमारे घर से लोग मज़ारों का अदब सीख के जाते हैं। वो दरवाजा पुलिस नहीं तोड़ सकती थी। आज परेशान हूँ कि एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा। उसको अगर इतने ही कहा जाए कि तुम्हें हम ओएसडी कर देंगे तो वो तो फिर रह गया ना। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मौत की चक्कियों में रहकर आए, कौन सी वीआईपी क्लास, जमीन पर रोटी देते हो, नमाज के लिए कुर्सी नहीं देते हो। तुम्हारी फाशिज्म, तुम्हारी फाशिस्ट सोच का ये सबूत है। और धमकियां किसको देते हो? जो अपनी बेटियों के साथ जेलों में रहते हैं। धमकियां उनको देते हो जिनके कमरों में धावा बोल के 4 दीवारी और चादर का को पामाल करते हो, तकद्दुस को, उनको धमकियां देते हो। ये धमकियां और अपने किराए के तर्जुमानों की जबान को लगाम दो, क्योंकि आज कमरा अदालत में ये साबित हुआ कि ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुई, क्योंकि पूरे 21 दिन कोई सवालनामा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और आज जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया। आपने तमाशा बनाया हुआ है 2.5 साल से इस मुल्क के अंदर। लोगों को कहते हैं कि आपके इश्तिहारात लगेंगे, आपके ढोल बजेंगे। अपना जो ढोल बज रहा है उसका हिसाब दो कि किस तरह आपने मीडिया की जबान को बंद किया। आज मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन उस केस में साबित नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि ये पैगाम देना है चैनल्स को बंद करके, मीर शकीलुर रहमान को बंद करके कोई आवाज़ ना उठाए, आपने चैनल बंद किए। आपने सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। आपने सियासी मुखालफिन की आवाज़ बंद की। आपने पार्लियामान की आवाज़ बंद की। हम आज भी यहाँ खड़े हैं और अपने हक की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। वोट को इज्जत दो की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। तुम रातों को वार करते हो, कमरे तोड़ते हो, दरवाजे तोड़ते हो, कातिलों से पर्चे करवाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये अगली दफ़ा जो तकरीर होगी ना, पहले तो नानी याद करा दी है, अगली दफ़ा जो तकरीर होगी उसको होशो हवास में कीजिएगा, उसको दायरे में रह कर कीजिएगा, क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा। ये मत समझें कि आपके धमकाने से और आपकी इस तरह की गुफ्तगू से, तड़ियां लगाने से तुम वजीर आज़म हो। जिस वजीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत हो उस कुर्सी का एहतराम करो। तुम 22 करोड़ अवाम आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपके झूठों की सज़ा आज काट रहे हैं। और शादरा के अंदर अभी मुझे इत्तला मिली है कि जो अवाम का समुंदर था और गुजरावाला में वहाँ एक और FIR आ गई है। अब पता लगाना है कि कातिल है, मफरूर है या बेनामी है। अभी ये पता लगना बाकी है, लेकिन लग जाएगा पता, या फिर आप ही का कोई नुमाइंदा है। ये बातें पता चल जाएंगी। लेकिन इमरान साहब, आपके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम FIR काट चुकी है। आपके मसनूई बयानिए का ढोल बज रहा है। पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुने। और खुदारा आपने तो कहा था कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं और कहें इस्तीफ़ा दो, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये मेरी बहन ने कल इसके ऊपर गुफ्तगू भी की। आज तो लाखों करोड़ों का मजमा ये कह रहा है कि
घर जाओ, क्योंकि वो लोग आज एहतसाब करते हैं उस शख्स का जिसने कहा था 50 लाख नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो लोगों के पास तो घरों के किराए देने के पैसे नहीं है, बिजली के बिलों के पैसे नहीं है, मरीजों की दवाओं के पैसे नहीं है। आज भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा। गुजरावाला में जलसा होता है तो हॉस्पिटल के जाते हुए रास्ते तमाम बंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने वहाँ भी कहा था कि जिनको दवाइयाँ महंगी करने से पहले नहीं सोचते, वो क्या जाने कि अस्पतालों के रास्ते बंद करना क्या नुकसान होता है और किस कर्ब से लोग गुजरते हैं। तो मैं बात को ख़त्म करते वक्त ये कहना चाहती हूँ कि आज साफ पानी बंद, इस अरेस्ट का जो भोंडा और होछे हथकंडे के ज़रिए APC को मफलूज करने की कोशिश में अपोजिशन लीडर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अरेस्ट किया गया। आज वो जुडिशल हुए, साफ पानी बंद हो चुका है। दूसरों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ये बात साबित होती है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई मंसूबा नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो सरकारी ख़जाने में खुर्द बुर्द या सरकारी ख़जाने को नुकसान या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को साबित करता हो। और बात कहाँ ख़त्म हो गई? बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया, बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया, बीवी से तोहफ़ा क्यों लिया, बीवी को तोहफ़ा क्यों दिया, बेटी को तोहफ़ा क्यों दिया। ये है हकीकत। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है और पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल आ चुका है। अल्लाह ताला हमेशा की तरह सुरखरू करेगा और इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले से निजात दिलवाएगा। कराची में हुआ, पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में हुआ, यहाँ तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर ली, लेकिन कराची में नहीं करने दी गई, यहाँ नहीं की। अब जो कोयटा में होने जा रहा है, वहाँ नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे या मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी होने वाले जलसे में नहीं कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे कर दूँ, ये कल किसी जगह के ऊपर ज़राए से खबर भी चल रही थी। ये वही ज़राए हैं जिन्होंने कराची में से कैप्टन सफदर को अरेस्ट कराया था ताकि आपस में इस किस्म की गलतफहमियाँ या दरारें आएँ। लेकिन मैं उनको भी एक साफ़ पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ दें, इससे नुकसान आपको होता है। नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि वो तकरीर अब कोयटा में करेंगे, क्योंकि अगली तकरीर हज़म हो जाए उसके बाद दूसरी तकरीर करेंगे। इस वक्त जो मोहम्मद वाशी की जो हालिया तकारीर है उसके हवाले से जो है एस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो इसको कैसे खोल दूँ? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब ने वाज़िया तौर पर जो अदारों और किरदारों की तफरीक है वो बताई है और नुकसान मुल्क को तब होता है। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत में इंतज़ामी बेहतरी की गुंजाइश है। लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले भी ज़रूरी हैं। 1000 खामियां सही, लेकिन क्या मुल्क को शरीफ, जरदारी या उनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं? क्या इमरान खान के कद का एक आदमी भी अपोजिशन के पास है? PDM की नाकामी इमरान खान से ज़्यादा मुल्क की ज़रूरत है। अपोजिशन रहनुमा लूट मार की दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुसार ने कहा कि 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद इमरान खान के सामने बेवक़्त है। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन बयानिया नाम नेहाद लीडर्स के जहनी अफलास का वाज़ेह सबूत है। अवाम जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मुल्की मफादात के खिलाफ हर अमल और हर बयान काबिल मज़म्मत है। सियासत नेक जज्बे और अवाम की खिदमत का नाम है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।